Good morning, student. Today we are at the end of service transition phase. We have learned the objectives, principles of service transition phase. Then we have learned the 7 processes of service transition phase. After doing the transition phase, completion of transition phase, or during the transition phase, we might face some challenges. There are some points, if we ponder them or if we handle them properly, that can become our critical success factor. And there are some risks associated with carrying out the service transition phase that we are going to look into this particular chapter. So obviously first we will go through challenges, then critical success factor, risk, and then we will discuss the service transition into certain difficult conditions that may arise. So let us see first what are the challenges are there. The complexity of services throughout the supply chain is increasing. So supply chain means whatever we are providing to customer, we are getting from external supplier, supplying it to customer is increasing, leading to challenges for any service provider for implementing new or changing existing service. It's not on IT not only support the primary business process in e-business, but it is the part of primary business process. अगर हम लोग सिर्फ आईटी सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा बिजनेस का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी आईटी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. There are wide range of challenges to successful service transition, such as allowing almost every business process and service in IT. So as earlier we have discussed कि आईटी सर्विस एक स्पेशलाइज आईटी सर्विस रहेगा और किसी भी बिजनेस प्रोसेस में आईटी आप लोगों को सर्विस के लिए या फिर अपना पार्ट प्ले करने के लिए अलाउ करती है, रिजल्टिंग इन लार्ज कस्टमर एंड स्टेक होल्डर ग्रुप इन्वॉल्व एंड अफेक्टेड बाय सर्विस ट्रांजिशन. तो इसमें जो आईटी का यूज होता है, ट्रांजिशन में जो जो चीजें हम लोग कवर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, वो लार्ज स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करता है. दैट इज अ चैलेंज. मैनेजिंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, आप लोगों के इतने सारे स्टेक होल्डर है, सप्लायर से लेकर कस्टमर से लेकर अपने कंपनी के अंदर के डिपार्टमेंट, उनके इंटरफेसेस, उनके रिलेशनशिप थ्रू द सर्विस ट्रांजिशन, इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ कस्टमर. Now you can say that we are providing a single simple type of service. Why we are talking about variety of customers? The nature and the perception and the thinking of every customer is different. Though they are having our only one service, but their expectation level, their perception level is different. That's why they become a different customer for us. Though they are utilizing our single service, or maybe they are utilizing our different multiple service. For example, we are providing just a internet service provider, but some of them want a faster internet, some of them might be happy with normal internet. So that makes them a variety of customer, users, program, projects, suppliers, and partners. Suppliers are obviously going to be different for different resources. So managing that many contact and interface becomes a challenging in service transition phase. Third challenge is that there is very less or little harmonization and integration of process, because every process has its own process owner, their own team, and they are carrying out their process. Though they are dependent on each other, but they are having their separate existence. So, if you are talking about number of processes involved in service transition, so there is very less harmonization. That means every team thinks their work is important and they are doing it separately. Harmonization वहाँ पे नहीं है. And discipline that affect the service transition. For example, finance team doesn't concern about whatever the input or output of other process. They are just thinking about how much less amount should be sanctioned so that maximum work can be done. Engineering team will ask for more finance or money to do more quality work. Management of human resource will think that less people, more work. So that is a challenge. Managing a harmonization between this finance, engineering, and manage HR, this is very difficult. This is a challenge. There are inherent difference between legacy systems, such as new technology and human element. People resist to undergo the new technology. उनको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, सालों से वो काम कर रहे हैं, तो नया इन टेक्नोलॉजी जब भी आता है तो डिफरेंसेस बनते हैं, पीपल हेजिटेट टू यूज दैट.
and they that lead to unknown dependency are likely to change. Whether the people, those who are going for a new technology, whether they are really understood or not, because that is a human nature to resist the change. There is another challenge to strike a balance between maintaining a stable production environment and meeting business need to change the service. So that challenge tells us that प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप लोगों को ट्रांजिशन फेज के बाद जाना है, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज ऑपरेशन फेज. तो प्रॉपर बैलेंस रहना क्वालिटी का, वो भी एक चैलेंज है कि यहाँ पे ट्रांजिशन में जो क्वालिटी आया वही हमको प्रोडक्शन में मेंटेन करना है. Another challenge is creating an environment that promotes standardization, simplification, and sharing of knowledge. So it is not difficult, but it is a challenge. बिकॉज जब हम लोग किसी ग्लोबल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते हैं ट्रांजिशन फेज में, उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं और नॉलेज शेयरिंग हमको एक्सपेक्टेड है. इट इज द सिंपल प्रोसेस, लेकिन व्हेन पीपल विल डू इट और नॉट, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन और चैलेंज. Being enabler of business change and consequently an integral component of business change program. Okay, changes are required. ऑलमोस्ट ट्रांजिशन फेज में कुछ ना कुछ मिलते हैं, लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट बनना एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज चेंजेस के बाद भी आपको सेम क्वालिटी मेंटेन करके रखना है. अनदर चैलेंज इज एस्टेब्लिशिंग लीडर्स टू प्रमोट द चेंज एंड इम्प्रूवमेंट. चेंज के बाद बहुत सारी प्रोसेसेस में एक प्रोसेस में चेंज किया, दूसरे प्रोसेस में भी चेंज करना है, तो वो चेंजेस अपने पीपल, अपने स्टेक होल्डर एज वेल एज कस्टमर्स, उनको एक्सेप्ट करवाना ये अच्छे लीडर की क्वालिटी होगी. तो ऐसे लीडर एस्टैब्लिश करना भी एक चैलेंज है कि जो चेंजेस को अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करे ट्रांजिशन फेज के बाद. एस्टैब्लिशिंग हु डज व्हाट व्हेन एंड वेयर, हु शुड डू व्हाट व्हेन एंड वेयर, so that is also a challenge. Finding out exact right people for right job at the right time एक चैलेंज है. It is not impossible, it is not difficult, but one kind of challenge is there. If you are making mistake here, that may result in negative impact on our quality or service or transition, that we can say here. There is another challenge, interesting one. We need to develop a culture that encourages the people to collaborate and work together effectively and to create atmosphere that promotes the business change. So we need to, again, the same, I think one point we have done with harmonization. Okay, to more making it more is another point is again reiterated here. We need to develop a culture which encourage the people to collaborate. ट्रांजिशन फेज में सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिजाइन के, स्ट्रैटेजी के, कस्टमर के एंड से, डेमो कस्टमर, सारे लोग, सप्लायर, सब लोग, बिकॉज हम लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आवर ट्रांजिशन फेज का पर्पज है. तो अगर इतने सारे लोग यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेटेजी में लोग सेपरेटली काम करते हैं, डिजाइन में सेपरेटली काम करते हैं, ऑपरेशन में ट्रांजिशन और ऑपरेशन के कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम फेजेस में थोड़ा लोग अपने प्रोसेस पे अलग काम करते हैं. ट्रांजिशन फेज ऐसे है जिसमें सारे फेज के लोग एक साथ काम करते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन देयर लाइव एनवायरनमेंट टेस्टिंग. दे आर पार्ट ऑफ दैट टीम with checking verification of on their part in the transition. So this becomes a stage where people can come together, and here is the chance to develop a proper grooming culture or blending culture, that हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक साथ आए, हमारे कस्टमर को भी अंडरस्टैंड करेंगे. एक चैलेंज है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है ट्रांजिशन फेज में. Developing standard performance measurement methods across the project and supplier, that is also a challenge. Ensuring that the quality of delivery and support is consistent with the business. ट्रांजिशन फेज में कुछ भी हम लोग कहेंगे कि लाइव एनवायरनमेंट में एज इट इज टेस्टिंग हो रहा है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में रहता है. एक्चुअल ऑपरेशन में सेम काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ डिलीवरी एंड सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसको इंश्योर करना, दैट इज अ चैलेंज. Ensuring that service transition time budget are not affected by events in the service life cycle earlier. बजट कट की वजह से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसे एज ए एग्जाम्पल दिया है. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. देर इज अनदर चैलेंज of understanding and evaluating balance between risk management and risk taking, as it affects the organizational overall strategy and potential mismatch between project and business risk. So whenever we try to understand, evaluate balance between risk management and risk taking, managing the risk, plan is approved, and then something comes, then we are managing the risk. And risk taking, that is a broad aspect. उसे कहते हैं, हम लोग बिजनेस में नया नया कुछ इनोवेशन करते हैं, तो दैट इज अ रिस्क, क्योंकि वो आइदर वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा.
लेकिन जब तक आप कुछ नया नहीं करते हो, आपके कंपटीटर से कुछ चैलेंजिंग या इनोवेटिव लोगों को नहीं देते हो, तो आपके कस्टमर आपके पास रुकेंगे ही नहीं और आपको कस्टमर भी बढ़ाएँगे अगर आप नया कुछ करने का कोशिश करते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका हर नया आइडिया, ओके, एबिलिटी टू टेक अ रिस्क इज़ गोइंग टू गिव यू बिज़नेस सक्सेस। कभी-कभी नए आइडियाज़ फेल हो जाते हैं। तो दैट इज़ द चैलेंज है कि आपका बिज़नेस भी नहीं डूबना चाहिए, नया इनोवेशन भी आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और रेडी टू टेक अ रिस्क एक आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द चैलेंज फॉर you. Let us talk about critical success factor in service transition phase. So what are the critical success factor? In transition phase, there might be some activity, there might be some process, there might be some decision which is going to be crucial and that may result in whether success or failure of our transition phase. Overall phase का जो objective है वो इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की वजह से, इन पॉइंट्स की वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से आइदर सक्सेस होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ऐसी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन फेज में उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सिमिलरली फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस, द प्रोविजन ऑफ सर्विस इन ऑल organization must be in line with current and rapidly changing business requirement. ऑब्वियसली ट्रांजिशन में हम लोग वही चीज चेक करते हैं कि हम लोग नए जमाने के हिसाब से हम लोगों का रैपिडली जो बिजनेस का नीड्स है, जो चेंज हो रहा है उसको एड्रेस करते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। द एम इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूअसली इन लाइन विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। क्वालिटी भी चाहिए, कंटिन्यूअसली भी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। हमको कम पैसे में अगर वो सर्विस डिलीवर करते आ रहा है तो वी विल चार्ज लेस टू द कस्टमर ऑल्सो, और कस्टमर को अगर वो कम पैसे में मिल रहा है तो ही विल ब्रिंग आउट मोर कस्टमर। This achieve this goal, the following key success factor to achieve this goal, following key success factor for the service transition must be considered. If you want to make service transition successful for overall business purpose, then we have to consider the following critical service factor. We need to understanding and managing different perspective of stakeholder that underpin the effective risk management within an organization and establishing the maintaining buy-in and commitments of the stakeholder. So first, critical success factor, important point to make successful transition, understand and manage different perspective of stakeholder. तो स्टेक होल्डर में क्या है, हमारे एम्प्लॉयज भी आए, हमारे बिजनेस का सीनियर मैनेजमेंट भी आए, कस्टमर्स भी आए, सप्लायर्स भी आए, एवरीवन, उनके पर्सपेक्टिव को एड्रेस करना है। ओके, उनके जो उनको जो कमिटमेंट की है, अगर हमारे एम्प्लॉयज को हमने कमिटमेंट की है कि हम सिंपल तरीके से आपको सर्विस डिलीवर करना सिखाएंगे तो वो उनको ट्रेन करो। कस्टमर को बोला है कि एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड के हिसाब से हम क्वालिटी देंगे तो वो उनको दो। दैट इज कॉल्ड एज बाय इन नेचर। दैट मीन्स आपने जो आइडिया लोगों के मन में डाला है तो वही अगर उनको देगा तो दे विल बाय इन, दे विल कम अंडर यू, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। Another important factor is that maintaining contact and managing all relationship during service transition. As in previous point, I have discussed that every other process ka people is going to be part of service transition phase. So that becomes important. They all are there at one place. So maintaining contacts and managing their relationship during service transition become a very critical success factor because that brings a harmony. They are at one place, and if they are if you are able successful in managing relationship, transition will be done smoothly. Integrating with other stages, process, disciplines affecting service transition, so proper integration hona chahiye. This is the important thing. Understanding inherent dependency of legacy system, जो ओल्ड सिस्टम है आप लोगों का उसका क्या डिपेंडेंसी है, नए टेक्नोलॉजी को ह्यूमन एलिमेंट किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट लीड टू अननोन डिपेंडेंसी एंड रिस्क टू चेंज। सो इस इससे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर पुराना सिस्टम है तो वो डिपेंडेंसीज है क्या उसका नया सिस्टम में। अगर आप नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लोग उसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करें। ओके, ह्यूमन एलिमेंट। ओके, और कोशिश करिए कि ज़्यादा चीज़ें चेंज ना हो ताकि नई चीज़ों को लोग रेजिस्ट करते हैं तो वो ना हो पाए। तो अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गए तो यू आर दैट इज गोइंग टू बी यूर one of the critical success point or factor. Next is, if you want to be successful, first thing, now we are talking about IT service industry, so we should have automation for error elimination एंड साइकिल रिडक्शन प्रोसेसेस। जैसे जैसे एरर कम कम होती जानी चाहिए, बढ़नी
नहीं चाहिए। So automation plays a very important role. Next is creation and maintenance of new and up-to-date knowledge in a way that people can find and use. Easy to use. Already knowledge management में हमने important factor discuss किया है। जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसके बारे में प्रीवियस एग्जांपल और इंफॉर्मेशन अगर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में रहेगी और नई नई चीजें उसमें आती रहेंगी और वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगा, अप टू डेट रहेगा, तो हमारे पीपल अच्छे से ट्रांजिशन कर पाएंगे, ट्रांजिशन फेज में सही डिसीजन ले पाएंगे. सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. We also need to develop the system, tools, processes, and procedure which are required to manage service transition, practice of good quality. तो हमारे सारे टूल्स कॉमन टूल्स होने चाहिए, सबको यूज करते आने चाहिए. कुछ सिस्टम्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे टू कैरी आउट ट्रांजिशन इन स्मूथ वे. प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, हम लोगों की एक्टिविटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम लोग क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सके. तो अगर हम लोग कर पाए तो वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा. We should have ability to appreciate and exploit cultural and political environment. जब हमने पिछले 2 पॉइंट में डिस्कस किया कि हम लोगों को कल्चरल एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, हार्मोनाइजेशन होना चाहिए. जब हार्मोनाइजेशन होता है तब सब लोग एक वे से, एक इश्यू से, नहीं ये कंपनी का काम नहीं है, हमारा काम है, जब ये फीलिंग डेवलप होती है तब कंपनी कैन एक्सप्लॉइट द कल्चरल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग कोई काम, ये काम मेरा है, ये मेरा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ऐसा नहीं करते. सब लोग, पूरा हाउस, पूरे रिलेटिव्स एक साथ होकर काम करना शुरू करते हैं तो सक्सेस टू मेक दैट पर्टिकुलर मैरिज अ सक्सेसफुल इवेंट. अगर कंपनी में कल्चरल और हार्मोनाइजेशन रहेगा, उनमें कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, मतलब हर एक का तो अपना अपना ईगो एंड प्राइड रहता है, लेकिन अगर वो मैनेज करके पैम्पर करके रखेंगे, आप अंडर कंट्रोल रखेंगे, सो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय के साथ, ऐसे एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल कर अपना इवेंट या फिर सर्विस प्रोविजन या ट्रांजिशन फेज सक्सेसफुली करवा सकते हैं. We should, our organization must able to understand the service and technical configuration and their dependencies. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन पता होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बेसिक एंड रिक्वायर्ड थिंग है टू मेक अवर सर्विस सक्सेसफुल और ट्रांजिशन सक्सेसफुल. The developing thorough understanding of hard factors and processes and procedures, soft factors, skills and the skills, ये एक ही बात है वहाँ पे, required to manage the transition practice. तो आप लोगों को प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर का प्रैक्टिस भी होना चाहिए और आप लोगों को सॉफ्ट फैक्टर्स जो स्किल्स है ह्यूमंस के वो भी आइडेंटिफाई करते आने चाहिए. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट, यू कैन ब्रिंग एंड पुट दैट पीपल एंड राइट पीपल एट राइट पोजिशन एंड ऑन राइट टाइम, so that you will get the transition properly done with the quality output. We also need to develop a workforce with right knowledge and skills. Obviously, that is the important point for successful transition. Let us learn the risk associated with transition phase or during the transition phase. The implementation of the practice of service transition should not be carried out without recognizing the potential risk to the service currently in transition and the release plan. The reason behind that, once after transition phase complete, and if you are not recognizing the risk, that will have their bad impact in operation phase in front of customer. So that kind of negativity is not good for any business. So whatever you want to identify or that might be in go in negative in operation phase, that has to be identified in transition phase. So is that possible? Yes, it is possible because transition we are doing in live environment. वहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, हम जैसे के वैसे एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं जैसे ऑपरेशन फेज में होगा. तो मोस्ट ऑफ द जो रिस्क है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकती है और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए रिलीज प्लान के पहले वो सारी चीजें पता चले ताकि वो रिस्क को यहीं पे एलिमिनेट करके या फिर उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सके. The basic evaluation of current service transition and planned projects will help us to identify the implementation risk. जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजिशन फेज में फुल सर्विस स्टार्ट टू एंड, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल लेवल पे ऑन ग्राउंड जिसे बोलते हैं क्या क्या रिस्क आ सकती है वो भी हमको पता चल सकता है. जैसे कुछ रिस्क है जो हम लोगों को पता चल सकती है. आई एम नॉट सेइंग और डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट सेइंग कि यही रिस्क होता है,
लेकिन जनरली जब ट्रांजिशन फेज में हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, वॉट एवर लिस्टेड रिस्क आर देयर पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन फॉर यू, that might be there and that might be minimized. For example, poorly defined scope and understanding of dependency in earlier life cycle stages, leading to scope creep during release and deployment. तो ये रिस्क आपको आइडेंटिफाई कब होगा कि जो स्कोप और डिपेंडेंसीज है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको पता चलेंगे कि अरे ये स्कोप के बाहर जा रहा है वर्क, एक्चुअली कस्टमर को कुछ ज़्यादा चाहिए था और स्कोप में ये चीज़ें मेंशन नहीं, स्कोप में वो चीज़ें मेंशन नहीं रहेंगी तो डिज़ाइन में भी मेंशन नहीं है। अभी क्या करें, पूरा प्रोसेस क्रैप करें, ज़रूरी रहेगा तो वो भी करना पड़ेगा। अगर वो कवर कर सकते हैं ट्रांजिशन फेज में ही, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज करके वापस से इम्प्लीमेंट करके वहीं पे टेस्ट कर सकते हैं, देन दैट विल गो टू रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। लेकिन अगर आप लोगों को पुअरली डिफाइंड स्कोप और डिपेंडेंसीज नहीं मिलती है तो दैट पर्टिकुलर थिंग नीड्स टू क्रिप ड्यूरिंग रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। Another is using a staff that are not dedicated to release and deployment activity. ऐसे स्टाफ को जो ट्रेन नहीं है रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी के लिए, अगर हमने उस काम में उनको ट्रांजिशन फेज में यूज किया तो दैट इज अ रिस्क बिकॉज दे विल नॉट एबल टू चेक वेदर द रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट इज प्रॉपरली डन और नॉट, स्पेशली इफ द एफर्ट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर टाइम। पहले तो उनको समझने में टाइम जाएगा बिकॉज दे आर नॉट डेडिकेटेड, फिर समझ के भी they are not going to be accurate because they don't have practice and that kind of knowledge, so that is the risk. If your management is incompetent, then obviously that is a risk. If you have inadequate corporate policies related to security software licensing, that might be risk. सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का अगर नहीं रहेगा तो आपका सॉफ्टवेयर कभी भी एक्सपायर हो सकता है, दैट इज अ रिस्क। ये चीजें अभी यहाँ पे मैंने, हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट ऑफ रिस्क दैट माइट अपीयर, तो ये हर एक कंपनी में सारी रिस्क आती है ऐसे नहीं, इसमें से कुछ आएंगी, बट ये एग्जाम्पल है बिकॉज आईटी सर्विस इंडस्ट्री इज वास्ट। पूरे यूनिट थर्ड तक टुडे दैट वट एवर वी आर एंडिंग, हम लोगों ने इतने एग्जाम्पल लिए ही नहीं, हम लोग 4-5 एग्जाम्पल में ही लर्न कर रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्री वेयर आईटी सर्विस कैन बी सर्व, तो अलग अलग सर्विसेज रहेंगी तो अलग अलग टाइप के रिस्क आएंगे, और हम लोग जनरलाइज एक लंबी लिस्ट चेक कर रहे हैं कि ये रिस्क आ सकती हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क कैन बी देयर। सो हम लोग भी जब हमारा कंफर्म करेंगे ट्रांजिशन फेज कंप्लीशन का, तो पहले चेक करेंगे कि इसमें से कोई रिस्क आता है या नहीं। सो इनएडिक्वेट अडॉप्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस फंड का कमी रिस्क है, डिलेज मूव टू डिप्लॉयमेंट, फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद अगर आपने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं किया, क्या फर्क गिरता है, अगर नेक्स्ट ईयर टैक्सेस बढ़ गए तो, टैक्सेस बढ़ गए तो कस्टमर को महंगा गिरेगा सर्विस। तो जिस ईयर में प्लान किया डेडलाइन फॉलो करना इसलिए ज़रूरी रहता है बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड रहता है टैक्सेस का चार्जिंग। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ फंडिंग फॉर चेंजेस विच ड्यूरेशन, मतलब जब भी चेंज के वक्त चेंज अप्रूव होता है लेकिन उसको कितना अप्रोप्रिएट फंड मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, फाइनेंस मिलना चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं रहता है। अगर वो लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगा तो ऑब्वियसली रिस्क है। lack of definition of the required control that leads poorly evaluated and unauthorized changes, difficulty in tracking and managing software licenses due to complexity, इसलिए common software use करने चाहिए to avoid that risk, unclear expectations, objectives from the customer, अगर वो सर्विस स्ट्रेटेजी फेज में completely सही ढंग से नहीं लिए गए तो ऑब्वियसली वो डिजाइन में भी नहीं रहेंगे और ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आएगा। कल्चरल डिफरेंस, misunderstanding between your own employee and processes, poor commitment and decision making, failure to obtain appropriate approval at the right time। ऑब्वियसली चेंज करना है, चेंज विद इन अ टाइम करना है और उसका अप्रूवल अगर लेट होता है तो इफेक्ट भी, चीज़ें भी उतनी उतनी डिले होती जाएंगी। इन डिसीजन, लैक ऑफ मेकिंग डिसीजन और लेट डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, जो चीज़ आप लोगों को एक्सपर्ट लोगों के साथ भी ट्रेनिंग का चाहिए वो आप लोगों को ऑपरेशन के फेज में, बिकॉज सर्विस ट्रांजिशन इज ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन फेज इन अ लाइव एनवायरमेंट, तो वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है जो चाहिए वो रिस्क होता है। फेल्योर ऑफ सप्लायर टू मीट कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, आपके सप्लायर ने आप लोग को जो कमिट किया है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये क्वालिटी के साथ हम लोग ये दिन में इतने इतने टाइम में इतने इतने अमाउंट में या क्वांटिटी में आपको सप्लाई करेंगे, अगर वो फेल होते तो दैट इज अ रिस्क। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम स्केल और देन एक ओन एक्सपोजर टू रिस्क।
डिलेज इन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए लेकिन उसमें ही 4-6 महीने जा रहे हैं, दैट इज रिस्क। सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट इज मिसिंग, उनका सपोर्ट नहीं रहता है तो लोगों में उत्साह नहीं रहता है काम करने का, दैट इज द रिस्क। तो सप्लायर मैनेजमेंट फंक्शन इज नॉट मैच्योर और इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब अगर एक सप्लायर चला गया तो प्लान बी एग्जिस्टेंट नहीं है, मतलब सप्लायर मैनेजमेंट का आपने कुछ किया ही नहीं वो प्रोसेस, तो दैट इज द रिस्क। डिजाइन प्रूवर रहेंगी, इनएडिक्वेट रहेंगी, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस रहेगा, ह्यूमन एरर या इनकम्पिटेंस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्यूर रहेगा, और मेनी मोर काइंड ऑफ रिस्क कैन बी देयर एंड कैन बी आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजिशन phase. Let us learn about service transition under difficult conditions. So there are sometimes or few areas of service transitions are difficult to implement, and there are some condition in which the service transition team finds it difficult to complete the service transition. In some circumstances, service transition will be required under a typical or difficult conditions such as short time scale. अगर उनको टाइम कम दिया गया तो उनको सर्विस ट्रांजिशन कंप्लीट करने में डिफिकल्टीज आती हैं। रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंस, अगर फंडिंग कम रहेंगी तो क्वालिटी अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रिसोर्स कम मिले, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स, नॉट इनफ पीपल और लैक ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है सर्विस ट्रांजिशन करना। करना तो है लेकिन डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट होता है। अब्सेंस ऑफ एंटिसिपेटेड स्किल्स, अगर उनको ट्रांजिशन के लिए टेस्टिंग करना है, रिव्यू और ऑडिटिंग करना है, अगर वो लोगों में वो स्किल नहीं रहेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। इंटरनल पॉलिटिकल डिफिकल्टी, स्टाफ डिस्टिंक्टिवनेस पे चाहिए था, यहाँ पे स्टाफ में अपना यहाँ पे मतलब है कि एक दूसरे से बनती नहीं है, देर थिंकिंग मैच नहीं होती है। ओके, सब बॉस और टीम मैनेजर के ईगोज है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टी आती है। रिडंडेंसी, रिपीटेशन काम करना पड़ता है क्योंकि लोग एक दूसरे के के बीच में जो डिफरेंसेस है तो कम्युनिकेट नहीं करते, तो ऐसा होता है कुछ काम रिडंडेंट हो जाते हैं, बार बार किए जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को पता ही नहीं किसने क्या किया। आउटसोर्सिंग ज़्यादा करना पड़ता है। डिफिकल्ट कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ कन्फ्रंटेशनल मैनेजमेंट स्टाइल, वहाँ पे ब्लेम गेम होते रहता है। इंटरनल राइवलरीज एंड कम्पिटिटिवनेस, ये सारा पॉलिटिकल डिफिकल्टीज में आता है। देर आर सम एक्सटर्नल डिफिकल्टीज आती है सच एज वेदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पोस्ट डिजास्टर एंड लेजिस्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने अगर बीच में टैक्सेस बढ़ा दिए तो ट्रांजिशन फेज में वो फाइनल कीमत या क्वालिटी डिसाइड करना थोड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। Clearly, some of these circumstances overlap with continuity planning, and many of our approaches in the service design publication will be relevant in difficult circumstances for successful transition. Though these situations are difficult, in situation में भी सक्सेसफुल ट्रांजिशन पॉसिबल है। इनको टैकल करने के अपने अपने मैनेजमेंट के पास तरीके होते हैं। इफ डिफिकल्टीज आर एंटिसिपेट, जरूरी ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन फेज में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो कि हम आज लर्न कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस। हमको पता है, अगर आज आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर यू नो दैट कि ट्रांजिशन फेज के वक्त ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप पहले से ही रेडीनेस रहोगे। यू कैन एंटिसिपेट दैट पर्टिकुलर डिफिकल्टी एंड यू विल मिटिगेट द मेजर्स, और आप लोग ऐसे मेजर्स प्लान करके रखोगे कि ऐसी डिफिकल्टीज ना आए। will be identified, will be form part of the service package to plan to route through transition, स्टार्टिंग से ही बना के रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। However, it is quite possible that difficulties are not anticipated, कभी कभी आप लोगों को नहीं पता चला कि ऐसा हो सकता है, possibly due to change circumstances and that they need to be adopted on the fly। तो ऑन द फ्लाई का मतलब क्या है, कुछ डिसीजन टाइम पे लेने पड़ते हैं, so that is on the fly. There is a case study in initial lectures, if you remember chapter number 1 or 2, on the fly का एक केस स्टडी है कि अगर हवा एक एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, ओके, तो उसको बताया गया है कि आपको 30 मिनट्स में डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अगर हवा उल्टी बह रही है एकदम फोर्सफुली, तो 30 मिनट में रेगुलर स्पीड के साथ हवाई जहाज अपनी जगह पे नहीं पहुंच सकता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, लेकिन उनका प्रोबेबल एम क्या है, 30 मिनट्स में डेस्टिनेशन पे पहुंचना, जो पॉसिबल होगा। वहीं पे डिसीजन लिया कि स्पीड बढ़ाएंगे, फ्यूल एक्स्ट्रा लगेगा तो चलेगा। ऑन द फ्लाई डिसीजन मतलब
ये कोई एरोप्लेन का एग्जांपल दिया मतलब एरोप्लेन पे डिसीजन करना ऐसे नहीं है। ऑन द फ्लाई का मतलब है कभी कभी अगर आपने चीजें एंटिसिपेट नहीं की कि ये डिफिकल्टीज आएगी और सडनली वो डिफिकल्टी आपके सामने आई, तो आपको इमीडिएट सोल्यूशन या डिसीजन लेना पड़ेगा टू टैकल दैट इश्यू। देयर आर सम पॉइंट्स टू डिस्कस। ओके, दैट द सेम थिंग व्हेन स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी और स्मूथनेस। ऐसी सिचुएशन आती है कि क्लाइंट को अभी का अभी आप लोगों का सर्विस चाहिए, डिप्लॉयमेंट चाहिए, जल्दी चाहिए। They are not very much concerned about the accuracy or smoothness. The implementation of new or change service may be more important in critical situations in the time than a degree of disruption. This is a risk management decision and general principles of risk management apply here. Some key factors contributing to success of this context. आप लोगों को ऐसे टाइम में क्या करना पड़ेगा? एम्पावरमेंट, आपके लोगों को ज़्यादा टूल्स दो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी दो, ज़्यादा सपोर्ट दो ताकि वो अपना काम स्पीड से कर सके। Service transition in volatile industries must act in a way that reflect corporate risk culture, does not undermine the business risk decisions. Though there is a time less, you can empower your employee to do speedy work. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बैंक लोन एप्लीकेशन का एक केस स्टडी स्टार्टिंग चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर बैंक लोन को हम लोगों को जल्दी से अप्रूव करना है, डिले कम करना है, तो हमारे लोगों के पास ऑटोमेशन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होना चाहिए लोन लेंडर के बारे में। तो जल्दी से प्रोसेस होगा लो। ए नोट टू नो द एब्सोल्यूट कट ऑफ डेट, एग्जैक्ट टाइम कब हमको डिलीवर करना है, टाइम पता होना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन कैसे होगा? ओके, so delivery early that could have been improved, so some key leeway assumed and there is no leeway, meaning that critical deadlines are missed, इसकी वजह से शायद डिले हो सकता है। So it is often preferable to be totally open and confident to get the work done within the time. Decide which transitional service component should be available at the cutoff date and which should be added later. Because यहाँ पे टॉपिक पे ही डिस्कस किया है कि when speed is more important than accuracy and smoothness, delivery is important. तो कुछ चीजें आप बाद में ऑपरेशन फेज में ऐड कर सकते हो एंड यू कैन स्पीड अप योर डिलीवरी। हाउ इज द कंपोनेंट सेपरेबल एंड व्हाट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी? जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है वो पहला डिलीवर करेंगे, जो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं वो बाद में डिलीवर करेंगे, इसेंशियल लिस्ट वाला पहले करेंगे। विच यूजर कस्टमर शुड बी द कट ऑफ डेट इन प्लेस, किसको टारगेट करके फिर वो डिलीवरी करे, बिकॉज यू डो नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एंड यू वांट टू फॉलो द डेडलाइन। सो फ्यू एडजस्टमेंट्स आर डन कि जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं वो बाद में ऑपरेशन फेज के बाद में देंगे और इसेंशियल चीज़ें पहले डेडलाइन में देंगे। ओके, ओके, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इफ यू फेल? अगर आप डेडलाइन फॉलो नहीं करते, अगेन ऑनेस्टली इट इज ऑफन द बेस्ट पॉलिसी हियर। आप लोगों को अगर आप टाइम पे नहीं डिलीवरी करते तो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, मनी पे इम्पैक्ट होगा, लाइव्स पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कस्टमर को वो सर्विस टाइम पे नहीं मिल रही, तो उनके लाइव्स का, लाइव मतलब यहाँ पे जीने मरने का बात नहीं हो रहा है, बट उनके लाइव्स पे असर गिरेगा। आपका सर्विस उनके लिए जरूरी है, वो नहीं दोगे तो उनको डिफिकल्टीज होंगी। पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट होगा, आपके राइवल उसका बेनिफिट लेंगे, कंपटीटर्स बेनिफिट लेंगे कि योर कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द डेडलाइन, रेपुटेशन खराब होगा। So understanding the crisis management can be very helpful in coping, and especially understanding that the rules for crisis management are different from those everyday management. क्राइसिस मैनेजमेंट इज ओनली फॉर अवर्टिंग क्राइसिस, और ऊपर जो 4-5 इम्पैक्ट हमने बोले थे उसको अवॉइड करना है। Just being aware of the first two laws of crisis management can help you to reassure people that situation is survivable. क्या करना चाहिए अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो? फर्स्ट इज डोंट पैनिक। पहला रूल है डोंट पैनिक। कुछ भी सिचुएशन आए, बी फॉर यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द पीपल, यू हैव द प्लान इन प्लेस, भले आपको उसमें स्पीड और कुछ एडजस्ट करके डिलीवर करना है। द सेकंड रूल इज a good crisis manager take decision instantly and acts on them. Take a decision, acts on them. If they later turn out to be correct, तो better रहेगा. But the speed is more often important than efficiency in a crisis situation. But speedily work हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिस है, नॉलेज मैनेजमेंट है, नोन एरर डेटाबेस है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास, हम लोगों ने जितनी सीखी सारी इंफॉर्मेशन मैन, नॉलेज मैनेजमेंट है, इतने सारे डेटाबेस है। गिव इट सम टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एंड टेक अ डिसीजन। रीड द लिटरेचर, पास्ट का सिचुएशन देखो, हिस्ट्री देखो, बट एक्ट, फॉर्म एक्ट करके उसके ऊपर काम करना चाहिए।
A success in these particular circumstances depends on empowerment and support, the belief in this support. Your staff must be aware of their level of empowerment, उन पे confidence होना चाहिए, and they must believe that organization will support their choices and they should not be afraid of court martial. मतलब अगर गलती हुआ तो गड़बड़ी करेंगे ऐसा उनके मन में डर नहीं होना चाहिए, तो ही ये काम होगा, तभी सक्सेस होगा। ऑथोराइजेशन चैनल मस्ट बी ओपन एंड फास्ट चैनल होने चाहिए, बिकॉज अभी एंड मोमेंट है, क्राइसिस आ रहा है और जल्दी से डिसीजन लेना है तो फास्ट होने चाहिए। एक्शन मस्ट बी एग्रीड इफ द चैनल डू नॉट वर्क, हायर डेलीगेटेड अथॉरिटी एस्केलेशन अल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ सपोर्ट, nothing, you have to give access and authorization. After the procedure there is a risk and no blame unless the required flexibility and response speed is constant. ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर होने के बाद रिस्क तो आएगा ही, बिकॉज आप लोगों ने क्या किया, अभी स्पीड बढ़ा दिया तो एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का चांसेस हो सकता है, आप कोशिश करेंगे ना, बट उसके बाद ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स, एक कभी कभी ये दूसरा सिचुएशन है जो आता है, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट, वन की एस्पेक्ट इज हियर, ये ऐसा क्राइसिस है कि जब रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज रहेगा तो कैसे हम लोग ट्रांजिशन को सक्सेसफुल बने। Here, the key aspect here is to determine what to measure and adhere to this decision and delivery framework. So here we need to know what is the important parameter. Speed है, cost कम करना है या फिर कुछ और है. And knowing that will eventually be the measure of importance. First, no blame for being expensive, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम है, लोग कम हैं, चीज़ें कम हैं और टाइम पे आपको चीज़ें डिलीवर करनी है, तो आपको ऑन टाइम पे कुछ चीज़ें परचेस करनी पड़ेंगी, तो एक्सपेंसिव हो सकता है। ओके, फॉर बीइंग एक्सपेंसिव व्हेन इट वाज अंडरस्टूड एट 3 पीएम व्हाट एवर द कॉस्ट टू, अगर आपको एंड मोमेंट पे लग रहा है कि रिसोर्सेज कम है और आपको डिलीवर करने, तो आपको वो कितने भी बजे पता चले इमीडिएटली, मतलब ये 3 पीएम का एग्जांपल यहाँ पे क्या इसलिए दिया है, लास्ट आवर में आपको पता चला है तो आपको कॉस्टली अफेयर करना पड़ेगा। पहले पता रहते तो हम लोग सोचेंगे कि मार्केट में ये चीज़ें कहाँ पे सस्ती मिलती है वहाँ से लेंगे, लेकिन ऑन टाइम पे एंड मोमेंट में हमको जो अवेलेबल है वो लेना पड़ता है। एस्टैब्लिशिंग द रिलेवेंट मेजर्स, हायरार्की, स्पीड, मनी, फुल फंक्शनैलिटी, some subordinate with absolute limitation, example as soon as possible, not more than 12,500। अगर रिसोर्स में अगर हम मनी रिसोर्सेज कम बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे जल्दी से जल्दी लेकिन इस कॉस्ट में, और एज चीपली एज पॉसिबल बट बाय 30 दिसंबर। ये सिचुएशंस है जो हम लोगों को बिजनेस में आते हैं। दिस रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बजट होल्डर, एंटरप्रेनर। So built in this particular, we need to ensure the correct parameter, whether it is the money related resource value short or date or time related resource short. Sensitivity and documentation is important. All employees who are actually and potential aware of this requirement need to be aware of the requirement and mechanism to inform staff quickly about all the changes and requirement where they are essential. Another crisis example is सेफ्टी क्रिटिकल सर्विसेज एंड हाई रिस्क एनवायरनमेंट। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो सेफ्टी क्रिटिकल होती है और हाई रिस्क रहती है। इफ द सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली डायरेक्टली सपोर्टिंग और एक्चुअली डिलीवरिंग द लाइफ डिपेंडेंट सर्विस, जैसे हॉस्पिटल सर्विस है, ओके, और वहाँ पे अगर वो इंटरनेट से बाहर से कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है रोबोट के साथ में, इंटरनेट बंद हो गया, क्या होगा, पेशेंट का तो लाइफ डेंजर में है ना। तो दिस काइंड ऑफ सर्विसेज कॉल्ड एज सेफ्टी क्रिटिकल। अब हॉस्पिटल में आईटी रहेगा बेस, बिकॉज इंटरनेट के बेस पे रोबोटिक ऑपरेशंस भी होते हैं। इमरजेंसी कॉल बिल्डिंग, फ्लड कंट्रोल, एयरक्राफ्ट फ्लाई बाय वायर, ये सारी सेंसिटिव और हाई रिस्क एनवायरनमेंट सर्विसेज है। यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा सेफ्टी एंड फुल प्रूफ अप्रोचेस लगेंगे। You will require features such as appropriate documentation, which is essential and often include counter signature and additional check on stage of approval. However, excessive documentation can be sometimes may be counterproductive, उसकी वजह से स्पीड स्लो हो सकता है। Accuracy typically takes all precedence over the speed, because ये हाई रिस्क एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। छोटे सी मिस्टेक, आईटी का आप लोगों पे भरोसा रहता है एंड दैट बिकम अ डिजास्टर। और यहाँ पे जो टेस्टिंग होगा इस पर्टिकुलर अगर हाई रिस्क एनवायरनमेंट का सर्विस का जिसमें आईटी यूज हो रहा है, उसको ट्रांजिशन फेज में रिगरस टेस्टिंग होगा, बार बार टेस्टिंग होगा जब तक श्योरिटी नहीं आ जाती है। लॉन्गर टाइम फ्रेम्स दिए जाएंगे,
More detailed data will be collected and maintained with the what is that our configuration management system ताकि accuracy बनी रहे. Safety measurement accurately assessed by an anticipated automatic system. What constitute acceptable level? क्वालिटी लेवल बढ़ा देंगे, एक्सेप्टेंस लेवल का बार रेज कर देंगे, सच एज सेफ रेडिएशन डोजेज इन एक्सरेज और रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट. सेटिंग साइन ऑफ अथॉरिटी. हर एक बंदा क्लैरिटी और साइनिंग करने के बाद, चेक और वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़ेगा. इंश्योरिंग दैट दोज पीपल आर नॉट दोज रिस्पॉन्सिबल आर नॉट ओवरली इन्फ्लुएंस बाय इनअप्रोप्रिएट प्रेशर कि चलो चलो जल्दी में कर दो, बॉस ने बोला इसलिए कर दो. नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. सच एज कंपनी प्रॉफिट और एम्प्लॉय बोनसेस और अपोज लाइफ थ्रेटनिंग कुछ बोल के नहीं करो ये जल्दी से, नहीं. अगर हाई रिस्क एनवायरनमेंट रहेगा तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. वर्किंग विद डिफिकल्ट कस्टमर, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और लास्ट टॉपिक है, देर इज नो सच थिंग एज अ बैड कस्टमर. कोई भी कस्टमर बुरा कस्टमर नहीं होता है. But there are often customers who are unclear about their role as a customer, and therefore they act in a way that they prevent and does not support the successful implementation. Okay, तो ऐसे कौन से कस्टमर है जो बैड नहीं है बट उनका थिंकिंग थोड़ा सा अलग रहता है और वो अपने आप को अपना रोल एज ए कस्टमर छोड़ के कभी कभी वो खुद को ही इंजीनियर समझते. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात किया था कि कभी कभी कस्टमर आपको कॉल कर देगा और वही सॉल्यूशन भी बता देगा कि ये मेरे घर पे प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ऐसे ठीक करने की जरूरत है. So that might be there. Example include customer who feel that they need to be involved in the detail of how things are done rather than assessing the service they provide. कुछ कस्टमर का अलग ही इंटरेस्ट रहता है कि पूरा डिटेल में आपने कैसे बनाया. दैट इज द बिजनेस सीक्रेट. अगर पूरा प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रोसीजर अगर हम लोग कस्टमर को बता देंगे तो देन ही कैन स्टार्ट हिज ओन कंपनी. तो ऐसी चीजों में हम कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते. Sometimes some customers are unable to make decision and choose options that meet their business needs. तो वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते नहीं, ये करे करे ए या बी, ए या बी. वो डिफिकल्ट होता है तो दे टेक टाइम टू डिसाइड व्हाट दे वांट. मेनी ऑफ द टाइम दे पैसे के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट करते हैं. सम कस्टमर डू नॉट मेक अवेलेबल स्टाफ एंड रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट इफेक्टिवली. मतलब आप किसी के घर में ये इलेक्ट्रिक का राउटर ठीक करने गए तो आपके सामने आके खड़े रहेंगे और वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये नट निकालो, ये निकालो, ये करो. मतलब जो इंजीनियर स्पेशलाइज उनके घर में काम करने आए हैं, ओके, तो वो उनको ही काम करने नहीं दे रहे हैं. नॉट विद बैड इंटेंशन बट दे थिंक दैट दे आर बेटर देन अस. सच a providing data and staff to evaluate transitional service or performing user test. In such a situation can be often improved through awareness and training of कस्टमर को ट्रेनिंग देके, यूजर्स को ट्रेनिंग देकर, ट्रांजिशन पर्सनल पेशेंस एंड डिप्लोमेटिक स्किल. कस्टमर ने कितना भी आपको कुछ भी बोला है, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस. ओके, होपफुली यू आर गोइंग टू आल्सो स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक. आपका कस्टमर आपका भगवान है, तो आप लोगों को पेशेंस एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स होने चाहिए. आप उसको प्यार से समझा सकते हो, सर लेट मी डू माई वर्क एंड देन इफ समथिंग मेक्स रॉन्ग देन यू कैन टेल मी लाइक दैट. Customer account management to reassure the customer and determine their requirement. Careful budgetary to control so that the customer can see the return on their staff time and other resource investment. So these things can be handled. So that's how we are at the end of transition phase. There are few questions in front of you for your theory exam. Many of that might come in your theory exam. You can take a screenshot of that. And thank you so much, students, for patiently listening to this lecture.